قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا. میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا. کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے, باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے, لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو, باتیں باپ بیٹے کی تھیں, اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی. یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم. دیکھیے باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے اللہ, نہیں کیا ادھر آئے نا, یا بنیا اے میرے. دیکھیں لفظوں کا حسن, اے میرے بیٹے. اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بڑی محنت کی, اب تو پیسے کمایا کر, مجھے دیا کر, تجھے نہیں پتا ماں باپ کی. ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں, سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر, باقی سب ٹھیک ہے. حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر, نماز قائم کر, نماز قائم کر. نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ, باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ. اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آگوش محبت میں پیغام دیتے ہیں, کہتے ہیں نماز قائم کر. اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر, تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, یہ نہیں فرمایا. فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھ, وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر. یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے, برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے. پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تُو نے صبر بھی کرنا ہے. نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر. اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے ہی نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے, ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے. یہ عام کام نہیں, اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں, یہ بڑے حوصلے والے, بڑے ہمت والے کام ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے. ملا جامی نے اس کو لکھا ہے, ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا, بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی. یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے, بھلائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ. اور ان ذالک من عزم الامور, بیٹے یہ معمولی کام نہیں, یہ بڑے عزم والے کام, یہ بڑے حوصلے والے. ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے, ماں جب کہے, دیکھا نا میرے بھائی, ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے. اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے, یہ پپی کے سامنے نہیں کرنی, بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا, اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا, تو سچ بولے گا. کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے, میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی. تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے. اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا. آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا, اس بندے کے پیسے دینے, اس فون سن, اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, آپ اندر بیٹھے تھے, بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے. پھر آپ نے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا, بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر, تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا ہے, کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے. یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار, آپ کا اخلاص, آپ کا درد. حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے, عالم بعد میں, اگرچہ پیدائشی ولی تھے, لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا. میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا, خلافت بعد میں ملی, سارا کچھ بعد میں ہوا. پہلے دن جب گھر سے نکلا, ابا جی میرے وصال کر گئے تھے, کہتے ہیں میری ماں نے, سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر, زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے, تیری زبان سے جھوٹ ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی, رو رہی تھی. کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی, طاری ہو گئی میری ماں کی بات. وہ میری ماں نے
आंसुओं के अंदर लपेट कर जो मुझे तोहफा दिया था ना सच का, वो मेरे जहन पर, दिल पर, रूह पर छा गया। और डाकू जब लूटने आए तो 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था। वो कभी किसी ने डाकुओं को भी बताया कि पैसे हैं तो ले लो। यहां तो शरीयत भी बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना माल, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मां ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना है। तो माएँ अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते हैं। माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार है। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है, कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया मिले नहीं, तो ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है, तो हज़रत गौसे आज़म कहते मुझे जलाल आया, गुस्सा। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज के बाद करना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे करीब नहीं आ सकता, खबरदार। यहां बच्चों को गुस्सा तब आता है जब मर्जी का बर्गर ना मिले। गौसे आज़म को गुस्सा कब आया? खबरदार सारा कुछ कर, आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूं। अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर हैं? तो हज़रत गौसे आज़म ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी मां ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। ये हम लोग इसको कहानी समझते हैं, कहानी नहीं भाई। ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं मैं और आप भी तौबा कर दें, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैफियत थी, वो तारी था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकुओं का सरदार कहता मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे, और 14 साल का बच्चा इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी। 14 साल का बच्चा, गौसे आज़म ने पलट के दिखा ये पैसे। तो डाकुओं का सरदार कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि बच्चे के जज्बात किस तरह के हैं, अफकार किस तरह के हैं, ख्यालात किस तरह के। कहता कहां जा रहे हो? कहा मैं इल्म सीखने बगदाद जा रहा हूं। तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? तो हज़रत गौसे आज़म ने पैसे उतार के फेंक के कहने लगे पैसे तो रख, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मां से वादा करके आया हूं कि सच बोलूंगा, ले पैसे तुझे दे रहा हूं। डाकुओं का सरदार कहता है बच्चे की उतनी उम्र नहीं जितने मुझे पाप करते साल गुजर गए, पर उस बच्चे का मां से किया हुआ वादा मुझे बदल गया। मैं दौड़ के पीछे गया, मैंने कहा अब्दुल कादर मुझे भी यार बगदाद ही ले चल। कहा वहां क्या करना है? कहा जिस उस्ताद के पास तू आगे बैठ के पढ़ेगा मैं उसके पीछे बैठ जाया करूंगा, चलो बुढ़ापे में मैं भी को रट्टा लगा के कुरान और सुन्नत सीख जाऊंगा। तो कहते तुझे क्या हुआ? कहने लगे अब्दुल कादर तू मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, मैं रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूं, तौबा मेरी। डाकुओं से कहने लगे जाओ कोई सरदार और बना लो, मुझे तो मां बेटे का रिश्ता जीत गया है, ये मां बेटे का रिश्ता मुझे जीत के ले गया, मैं जीत गया मां बेटे के रिश्ते में, ये मुझे फतह कर गए, तुम कोई और सरदार बना लो। तो 22-23 डाकू थे पीछे आके बैठ कहने लगे सरदार अगर गुनाह इकट्ठे किए हैं तो नेकियों में अकेला तो ना छोड़। ओ भाई मां बेटे का रिश्ता और मां बेटे की तरबियत, तो 14 साल का बच्चा तौबा करा जाता है। पर मुसीबत यह है कि हम वो माएँ तैयार करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने सदा नाकाम नहीं रहना, माएँ तैयार करनी है। माएँ तैयार ये वाला मुतालबा ना बीवी से करते हैं कि मेरी बीवी फटाफट सही हो जाए, बेटी से करें ये मुतालबा, बहन पर करें ये मेहनत। ये वाली मेरे हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब खुनसा हुजूर की एक सहाबियाँ हैं, इन्होंने बाद में कलमा पढ़ा। दौरे जालियत में इनका एक भाई कत्ल हो गया था। इन्होंने अपने भाई के जाने पर, कत्ल होने पर एक मरसिया कहा था। वो मरसिया इतना मशहूर था कि जहां भी पढ़ा जाता लोग अपना कोई जाने वाला याद करके रोने लग जाए। हमारे यहाँ तो अब नाथ खानों ने रिवाज बनाया ना, जिसके घर में कोई फौतगी होती है उसे और ज्यादा रुलाते हैं। मियाँ साहब तो शेर लिख गए थे, कोई ये तो नहीं उन्होंने कहा था कि सारे कुलाते ही पढ़े जे, उन्होंने तो शेर लिखा था ना बाप मरे ते सिर नंगा हुंदा ते भाई मरन ते कंड खाली ते मामा बाद मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। अब उसको पता है इस पर रोएंगे भी ज्यादा, नोट भी ज्यादा देंगे, तो हर जगह जाके ना बात यही छेड़ देता है। अब वो बेचारे बच्चे पहले से ज्यादा रोते हैं, तड़पते हैं। हालांकि हुक्म ये था कि जब किसी जाओ ना फौतगी पे तो उनको रुलाना नहीं बल्कि उनको हौसला देना है। नाथ खानों की बात हुई है तो आपने बड़ा गौर से देखा है मेरी तरफ, मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं। वो जाएंगे ना तो पूछेंगे ये बच्चा उसका, ये जो फौत हो उसका ये बच्चा, ओहो
बेचारा देखो ना, छोटा सा था, अम्मा चली गई, बड़ा मुश्किल है यतीमों के लिए। तो यतीम चरा नफसियाती मरीज बन जाता है। वो कहता है बिल्कुल चाचा सही कह रहा है, यतीमों के बड़े बुरे हाल होते हैं। इस तरह करके हम नफसियात कमजोर करते हैं बच्चों की। हालांकि बताना चाहिए बेटे फिक्र न कर, मेरे नबी पाक भी तो यतीम ही पैदा हुए थे ना, तो सारे यतीमों पर हुजूर का साया है। बजाय हौसले देने के हम और कमजोर करते हैं, और ज्यादा कमजोर करते हैं, और ज्यादा लोगों को तकलीफ देते हैं। तो कसीदा जनाब खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा मशहूर था, अरबी कसीदा लिखा था उन्होंने। किसी के यहाँ भी कोई इंतकाल कर जाता तो उनका वो अरबी कसीदा पढ़ा जाता, और जब वो कसीदा पढ़ा जाता तो लोग धाड़े मार मार के रोते, धाड़े मार मार के। हालांकि रोना रुलाना इतना अहम काम नहीं, जितना किसी के दिल को तसल्ली दे देना अहम काम है। जितना किसी की अश्क शोई, अश्क आंसू निकालना तो जुर्म है, आंसू पूछना सवाब है। यहाँ लोग रुलाने की ड्यूटी करते हैं, आंसू पूछने की ड्यूटी नहीं करते। हजरत जनाब सैयदना खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका वो कसीदा पढ़ा जाता, लोग धाड़े मार मार के रोते। ये वही खुनसा थी कि जंगे ओहद से कुछ महीने पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये वो बीबी मशहूर शायरा जिनका कसीदा रोने रुलाने के लिए पढ़ा जाता है। इनके 4 बेटे जवान थे। ओहद के लिए जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, फौजी आए, माएँ बहनें बच्चे तैयार करें भेजें, तो इनकी सहेलियां कहने लगी कलमा तो तू पढ़ गई है, तेरे बच्चे भी पढ़ गए हैं, पर तेरा सबको पता है तेरे बच्चे कोई नहीं जाएंगे। इसलिए कि एक भाई के जाने पर तूने कसीदा लिखा है तो आज तक पढ़ा जा रहा है, तो 4 बच्चे कैसे तेरा नहीं जाता। जनाब खुनसा चुप हैं। जब जंगे उहद के लिए सिपाही और मुजाहिद निकलने लगे तो 4 बेटे लेके चौक में आ गई। वो बीबी जिसका रोना धोना मशहूर था, वो अपने बच्चों को चौक में खड़ा करके कहती इधर देखो, कसम है मुझे अल्लाह की इज्जत की, मैंने तुम्हारे बाप के साथ। ये माँ लेक्चर दे रही है और चौक में दे रही है ताकि दुनिया को पता चल जाए। जनाब खुनसा का खुतबा मदीने के चौक में, कहने लगी मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जाहिलियत के जमाने में भी तुम्हारे बाप के बिस्तर को कभी नापाक नहीं किया, कभी नापाक नहीं किया। मैंने तैयब और ताहर बच्चे पैदा किए, और मैंने तुम्हें अपने सीने से अपने अपने वजूद की खुराक तुम्हें दी, दूध पिलाया। मेरे बच्चों, सारा जमाना जानता है कि मैं किसी की जुदाई नहीं सह सकती। मेरा भाई गया था तो मेरा कसीदा ज़रबुल मिसल बन गया, दुनिया पढ़ती है, पर अब सुनो, अब मैं मुसलमान हूं, अब मैं रसूल पाक का कलमा पढ़ती हूं। याद रखना, जब मैदान में तीर चले ना और तलवारें चमके और नेज़े बरसे, तो सबसे पहले जख्म मेरे बच्चों को आने चाहिए। बच्चों की तरबियत मां कर रही है, पहला जख्म तुम्हें लगे। और फिर कहने लगी अगर मेरा दूध पिया ना तो फिर याद रखना कोई एक तीर भी तुम्हारी पुश्त पे नहीं होना चाहिए। जितने भी खाना सीने पे खा के आना। कोई मुझे ये ना कहे तेरे बच्चे भाग गए थे और पुश्त पे उन्होंने तलवारें खाई और जख्म खाए, और लोग खबरदार सीने पे तीर खाना, खबरदार जुर्रत का मुजाहरा करना। ये खुतबा दे के जनाब खुनसा अंदर चली गई। लोग कहते हैं हैरान रह गए। मजे की बात ये थी, फिर भी बीबियां कहने लगी खुतबा तो दे दिया है, दुआ करो इसका कोई बच्चा शहीद ना हो जाए। बड़े सख्त कसीदे लिखती है, शहीद ना हो जाए, दुआ करो। लेकिन अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, उनके 4 बच्चे शहीद हो गए। 4 18 जख्म थे बच्चों के पर, थे सारे सीने पे। 18 घाव थे तलवारों के पर, सारे सीने पे। मेरे महबूब बहुत से वापस आए। ओ भाई, 4 बेटे जिस माँ के चले गए, उस माँ को तसल्ली कौन दे। जनाब खुनसा आके खड़ी हुई तो सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था कोई दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, लेकिन मेरे हबीब पाक नजर उठाई, का खुनसा तुझे पता होगा तेरे 4 बेटे शहीद हो गए। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोगों, हुजूर यही तो दुख है, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है। कहने लगी हुजूर यही तो परेशानी है, मेरे 4 थे, दिल करता है मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता है 400 होता। 4 करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान 2 जहां फिदा। सोनिया मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का हुजूर 4 थे। और फिर मस्जिद नबी आज भी उस माँ की जुर्रत की गवाह है कि माँ पूछने लगी सोनिया मैं ये नहीं पूछने आई कि मेरा कोई बचा है कि नहीं, ये पूछने आई हूं कि मेरे बेटों ने कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया। हुजूर कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया मेरे बच्चों ने, कोई पुश्त पे जख्म। तो रसूल पाक ने फरमाया खुनसा तेरी जुर्रत को अल्लाह कबूल फरमाए, तेरे बच्चों ने जितने भी जख्म खाए हैं सीनों पे खाए।